and welcome back to my channel. Welcome to your another reading. As the title suggests, ये वीडियो होने वाला है you versus them. आपके person versus आप क्या पर्सपेक्टिव रखते हो ये कनेक्शन के टूवर्ड्स. What are their current feelings? What are your feelings? आई एम डूइंग इट बिकॉज आपके फीलिंग से आपको एक कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है, बिकॉज हर वीडियो रेजोनेट नहीं करेगी आपसे. सो बेस्ड ऑफ योर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड थॉट्स टूवर्ड्स योर पार्टनर विल लेट यू नो वेदर दिस रीडिंग इज फॉर यू और नॉट. Right, so you versus them, we will see what are their current feelings, thoughts and intentions towards your connection. उनका पर्सपेक्टिव क्या है रिलेशनशिप को लेके versus आपका पर्सपेक्टिव क्या है रिलेशनशिप को लेके. Right, so let's begin with your reading. This is your pile number 1 and this is your pile number 2. You can pause the video if you guys need more time because we will get right into your reading. Hi pile number 1, so let's begin with your reading and let's see what are your current feelings and thoughts about your person, and if that confirms that this is your reading, then we will move forward with your partner's thoughts and feelings. What are pile number 1's feelings towards their partner? Okay, we have 6 of Cups. You want reunion. You are thinking about the memories. You are thinking about the times that the two of you have spent. You genuinely like this person. This person really makes you happy. 6 of Cups, you want the reunion. You want this person to reach out, or you just cherish the memories between the two of you a lot. You could want this person to come towards you and approach you, or make a move towards you, confess their feelings. And if this is a new person, then I feel like you really enjoy spending time with this person. You enjoy sharing memories, time with this person. 5 of Swords. But you could be a bit icky about this person. You could be a little conflicted whether you really want this person or not, because you have some trust issues, because you don't know whether this person is going to be as invested into the relationship as you are currently, and you're not sure whether this person also shares the same feelings and emotions towards you. You could feel really lonely without this person. You could feel really tense. You want things to work out, but then you feel like you've seen everything. You've seen all the possibilities, or you've done all the work that you could possibly do in order to make this relationship work out, but somehow things are just not working out. So you could be a bit stressed about, even if I want this person, but will it work out in the end? Now, if that's your energy, then let's see what are the current feelings of your partner. Let's get into it. Do hit that subscribe button if you haven't already. Like this video. Do let me know in the comment section below if it resonated. And let's move forward with your partner's energy. Pile number 2's partner. What are their thoughts and feelings towards them? Pile number 2's partner. Their current thoughts and feelings. Oh my god, we have the Page of Cups. You wanted this person to be in the Page of Cups energy, and they are also in the Page of Cups energy. Maybe both of you are expecting each other to reach out to each other. Both of you are expecting for the other person to come and reach out, for the other person to take the action. Both of you don't want to be the first one to actually make the move, या फिर दोनों ही चाहते हो कि एक दूसरे से जाके बात करो, but then something is holding you back. Something is holding the two of you back. ये पर्सन हो सकता है आपके साथ लॉन्ग टर्म व्यू को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और दे बिलीव कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो. टेक इट अदर रेजोनेंस. पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है कि वो भी सेम एनर्जी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर उनको पता है आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो. उनको पता है कि आप पोटेंशियली उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख करके बैठे हो अभी फिलहाल. ये पर्सन थोड़े से रेस्टलेस है,
हो सकता है रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है, बर्नआउट फील करते हैं, इम्पल्सिव है, इनको पता नहीं है क्या करना चाहिए। मतलब ये अगर इनके लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है किसी चीज़ को लेके, कोई चीज़ अगर अनप्रिडिक्टेबल है तो ये उसको ठीक करने के बजाय ये उससे भाग जाएंगे। दैट्स द टाइप ऑफ पर्सन दे आर, और दैट्स द टाइप ऑफ एनर्जी दे आर इन राइट नाउ। देन वी हैव द 2 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये चाहते तो है इक्वल गिव एंड टेक, ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सही बने, ये चाहते हैं कि बोथ ऑफ यू कम ऑन द सेम पेज एंड थोड़ा ट्रांजिशन हो जाए आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों मूव ऑन कर लो ये सारी चीज़ों से। कभी उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, या कभी उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो आपके बीच में है उनको पीछे छोड़ के दे जस्ट शुड कम एंड मतलब आप दोनों की चीज़ें ठीक हो जाए। 2 ऑफ कप्स बहुत वाटर एंड एयर साइन है यहाँ पे भी वाटर एंड एयर आया है, यहाँ पे भी वाटर एंड एयर आया है। तो सकता है आप या आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स है। तो कप्स इन सॉर्ड्स की एनर्जी है, थॉट्स एंड इमोशंस की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी नहीं है। आप दोनों ही अपने थॉट्स में रहते हो, कोई इमोशंस को फील करते हो, बट देन एक्शंस यहाँ पे अभी तक नहीं लिए हैं किसी ने, कोई सोच भी नहीं रहा है एक्शन लेने का। आई टेल यू, अगर सोचते भी हो तो इट्स जस्ट इन द माइंड, इट्स नॉट इन द एक्शन। देन वी हैव द वर्ल्ड। यहाँ पे कोई साइकिल है जो आप दोनों के बीच में कंप्लीट होने वाली है, या फिर कंप्लीट होना इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस आना इम्पॉर्टेंट है, तभी जा करके आपको फुलफिल्ड फील होगा रिलेशनशिप में। इनकी फीलिंग्स क्या है इनके तरफ, इनके पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स फाइल नंबर 1, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो चाहते हैं कि थोड़ी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हो सकता है कि आप चाहते हो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी है, जल्दी कंक्लूजन्स मिले, जल्दी सब कुछ हो, बट आपके पार्टनर थोड़ा ना धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाने में बिलीव करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो लोग होते हैं स्पिरिचुअल, उनका फर्स्ट लेसन तो वही होता है कि यू लर्न पेशेंस, एंड योर पार्टनर टीचेज यू पेशेंस बाय मेकिंग यू वेट इन अ रिलेशनशिप। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कार्मिक लेसन्स देखे हैं कि जो टैरो देखते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनके पार्टनर जल्दी से आए, कन्फेस करे, चीज़ें सही करे, बट देन उनके पार्टनर उनको पेशेंस सिखाते हैं, एंड दैट्स योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग एंड गेटिंग इनटू योर स्पिरिचुअल पाथ, राइट। हो सकता है ये पर्सन थोड़े रूटीन ओरिएंटेड हो, अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन है। ओके, आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके साथ कि चीज़ें फाइनली स्टेबलाइज हो जाए, एंड दोनों में से कोई तो एक एक्शन ले ले कि चीज़ें स्टेबलाइज हो जाए। आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी की एक्शन चाहते हैं आपके पार्टनर, बट उनका इनर चाइल्ड जो है वो फ्रीडम चाहता है। उनका इनर चाइल्ड जो है वो थोड़ा क्लाउडी हो सकता है, थोड़ा एरोगेंट हो सकता है, थोड़ा निगेटिविटी में फंसा हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है, उनको सैडनेस जल्दी फील हो जाती होगी सेटबैक से, बट थोड़े केयरलेस तो है आपके पार्टनर। दैट्स वन थिंग दैट आई सी। देखो, आइसोलेशन और लोनलीनेस तो आपके पार्टनर भी फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फील कर रहे हो। द हर्मिट रिवर्स दोनों के एनर्जी में आया है, तो आप दोनों ही फील करते हो। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। अगर ये बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते तो हो सकता है कि अपने बिजनेस में फोकस करते हो, एंड वो बिजनेस में उन्होंने अर्न करना स्टार्ट किया हो बिकॉज ऑफ यू, या फिर जब भी ये काम करते हैं इन जनरल आपके पार्टनर हो सकता है आपके बारे में सोचते हैं। 7 ऑफ कप्स, या एक थोड़ी विशी ड्रीमी एनर्जी में आपके पार्टनर रहते हैं व्हेनेवर दे आर ट्राइंग टू वर्क, एंड लैक ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पे, डिलेज है, प्रोकास्टिनेशन है, पुअर कम्युनिकेशन है, इंस्टेबिलिटी है आप दोनों के बीच में, या फिर ये पर्सन के लाइफ में इंस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट एक्शन, व्हाट विल बी दैट नेक्स्ट एक्शन? नेक्स्ट एक्शन भी वही है। आई टेल यू पाइल नंबर 1, आई बी ऑनेस्ट विथ यू, यहाँ पे स्टिल मुझे मैनिपुलेशन, सिर्फ बातें, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ भी जाएंगे तो सिर्फ बातें करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, डिसीट करेंगे, झूठ बोलेंगे। ये एक्शन लेने में या फिर कुछ स्टेबल क्रिएट करने में अभी भी नहीं है एनर्जी में ऐसे वाले। हाफ फेज्ड एक्शंस होंगे, लेंगे भी तो आधी अधूरी एक्शन लेंगे ताकि आप उनके लाइफ में रहो, बट देन दे विल वैनिश अवे। उनका ज़्यादातर अभी ध्यान होगा सेल्फ एक्सपेंशन की तरफ, गॉसिप या फिर बैड इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके रिलेशनशिप को सराउंड करे एट दिस टाइम। नेक्स्ट एक्शन उनका है वही मूडीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन, जेलसी, अनट्रस्टवर्दी, अनरिलायबल एंड अनप्रिडिक्टेबल। उनका नेक्स्ट एक्शन भी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल ही है,
अगर वो आएंगे भी तो सिर्फ बातें करेंगे, उनका ध्यान एक्शन पे नहीं होगा। एक्शन लेते हैं तो आधे अधूरे एक्शंस लेंगे, इनकंसिस्टेंट एक्शंस लेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। देन वी हैव पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन, फियर ऑफ चेंज, सफरिंग, या एग्जैक्टली। एंड ये सब हो रहा है बिकॉज आपके पर्सन ग्रो नहीं करना चाहते, या फिर आप भी ग्रो नहीं करना चाहते हो, बिकॉज एनर्जीज गोज वाइसा वर्सा बोथ द वेज। हो सकता है जितना आप एनर्जीज को रेजिस्ट कर रहे हो, चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, उतने ही आपको पार्टनर भी करते हैं। तो बोथ ऑफ यू आर नॉट रेडी टू ग्रो एंड इवॉल्व इन द कनेक्शन, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम हैज बीन देयर। देन वी हैव द स्टार एंड द क्वीन ऑफ कप्स। देखो प्यार है, 10 ऑफ कप्स, फ्यूचर के लिए होप भी है, दोनों की तरफ से है। द स्टार होप का, हीलिंग का, फेथ का, एक रिन्यूअल का, स्पिरिचुअल गुड का, स्पिरिचुअल गुड कर्मा का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का। एंड क्वीन ऑफ कप्स तो कंपैशन है, प्यार है, नर्चरिंग, हीलिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी आप दोनों चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट भी मान सकते हो। इमोशनली यू गाइस सैटिस्फाई ईच अदर ऑन इमोशनल लेवल, बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज योर एक्शंस एंड योर रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब आप, हो सकता है आपके ईगो में स्टक हो। ईगो इज नॉट एरोगेंस, ईगो इज जस्ट कि आपको लगता है आपका तरीका जो है रिलेशनशिप को लेके, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो सही है। आपके पार्टनर को लगता है कि उनका तौर तरीका, उनका परसेप्शन रिलेशनशिप को लेके सही है, एंड बीच में क्लैशेस आते हैं बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के तौर तरीकों को नहीं जानना चाहते हो। आप अपनी शॉट लेके खड़े हो, डिफेंसिव हो जाते हो। आपके पार्टनर जो है वो चले जाते हैं जब आप डिफेंसिव हो जाते हो कि ठीक है मुझे नहीं लड़ना, या फिर वाइस वर्सा। तो ये एनर्जी से बाहर आना और एक्चुअली स्टेबिलिटी को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये वही होते रहेगा, आप साइकिल में फंस जाओगे। प्यार है, इमोशनली अटैचमेंट है, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, दोनों बोथ ऑफ यू वांट इक्वल गिव एंड टेक। आई ऑल्सो लुक एट दिस कार्ड एज 2 ऑफ कप्स बिकॉज, बट यहाँ पे वन ही है, मतलब एक पर्सन चाहता तो है रिलेशनशिप को निभाना, बट देन सिर्फ एक ही पर्सन एफर्ट्स डालता है, या फिर एक ही पर्सन से एक्सपेक्टेशन की जाती है रिलेशनशिप में कि वो एफर्ट्स डाले। तो ये एनर्जी से बाहर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइल नंबर 1। अदरवाइज लोनलीनेस एंड अकेलापन और कन्फ्यूजन की एनर्जी में फंस जाओगे आप दोनों। एक अकेलापन और कन्फ्यूजन की एनर्जी हमेशा रहेगी आपके कनेक्शन में, जब तक आप लेसन्स नहीं सीखते हो, जब तक आप इमेच्योरिटी से डील करते हो कनेक्शन के साथ। आप दोनों, नॉट जस्ट यू बट आप दोनों, आपको दोनों को बोला जा रहा है कि थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को। अगर आपके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर कोई अग्रेसिव हो रहा है, या फिर कोई झगड़ा हो रहा है, या फिर कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, तो आपको वही समय पर उनको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा वेट कर सकते हो सकता है आप उनको भी समझने की ट्राई करो, एंड 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अपना ओपिनियन को इंट्रोड्यूस करो। देन दैट विल बी अ हेल्दी वे टू डील विद द रिलेशनशिप और विद दैट सिचुएशन, राइट? That's pretty much what I have. I feel like pulling out one more card. Wait. Pile number 1. Pile number 1. What do they need to know? Intimacy in reverse and support in reverse. A sense of intimacy may be fading, unresolved. इमोशनल इशूज और लैक ऑफ ऑनेस्टी कुड बी क्रिएटिंग डिस्टेंस। आपको बोला जा रहा है बी ऑनेस्ट विथ योर पार्टनर, बिकॉज आपकी इमोशनल इंटिमेसी, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रहना सीख जाओगे, देन दैट्स हार्मफुल फॉर द कनेक्शन। देन वी हैव फाइट, प्लान, समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम। योर पैशन लीड्स you to the love you desire. So follow your heart, not your logic. Embrace healing by being kind, balancing life's constructing forces. Like I said कि जब आपके बीच में थोड़े constructing opinions आते हैं, conflicting opinions आते हैं, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा आप जितना kindness से, empathy से वो situation को deal करोगे, उतना वो situation improve करेगी. But आप जितना point proof करने के लिए, दोनों, this goes vice versa, या फिर आप जितना needing to be right in the situation, or should I say your way is the right way dealing with a relationship, ये पर्सपेक्टिव से चलोगे तब तक ये क्लैशेस रहेंगी. आपको बोला जा रहा है इवन इफ आगे वाला गलत है तो थोड़ा काइंडनेस से वो सिचुएशन को डील करो तो आप चेंजेस देख पाओगे आपके रिलेशनशिप में. वरना फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ये कंटिन्यू होगा. एंड ओवर कमिटेड मत हो जाओ रिलेशनशिप से. आप अंडर कॉन्फिडेंट करते हो शायद, इसलिए आप ओवर कमिटेड हो जाते हो रिलेशनशिप्स में, विच क्रिएट्स instability in your life, right?
That's pretty much it. Do hit that subscribe button. You can book the personal reading from the link in the description box below. If you haven't already, do subscribe to my other channel as well. I post there zodiac sign based readings. Link will be in the description box for everything. Sending you love and light. We'll see you guys in the next one. Bye bye. Take care. Pile number 2 and welcome to your reading. It's currently 222 as I start your video. So let's begin with your reading and let's see you versus your partner. What are your current feelings and thoughts and intentions or energy in general towards your partner, and if your energy confirms that this is your reading. But even if your intuition confirms that this is your reading, then we will take a look at what are the feelings, thoughts and intentions and next actions of your partner towards you, and what are their energy generally towards your connection at the moment. Let's begin with your reading and let's get into it. We will begin with your current thoughts and feelings, and then we will move towards your partner's thoughts and emotions. Pile number 2's thoughts and feelings towards their partner. What are the pile number 2's thoughts and feelings and energy towards their partner right now? The Lovers. Okay. Okay, तो पहला, oh my god. ओके, बहुत ही क्लियर मैसेजेस है. लेट्स गेट इनटू इट. तो पाइल नंबर 2, आपके सबसे पहला थॉट आपका तो यही है कि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन ब्लेस्ड है, डिवाइनली गाइडेड है, डेस्टाइंड है. आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है. अगर आप आपके एंसेस्टर्स में बिलीव करते हो या फिर अगर आप कोई देवी में बिलीव करते हो, काली माँ में बिलीव करते हो, तो आपको लगता है कोई तो फेमिनिन एनर्जी है जो आपके कनेक्शन को ब्लेस करती है. अगर फेमिनिन एनर्जी नहीं तो उनके स्पाउस, जैसे काली माँ के जो स्पाउस है महादेव, काल भैरव या महादेव, शिव जी, वो आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं. ये आपका पहला थॉट है. ठीक है. सेकेंडली, आप ये पर्सन के साथ अपना सब कुछ देखते हो. पाइल नंबर 2, द हिएरोफेंट, द 10 ऑफ कप्स. यू सी अ फ्यूचर विद देम, यू वांट टू गेट मैरिड टू देम, या फिर आपको एक पोटेंशियल दिखता है इनके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करने में, विच बॉइल्स मी डाउन टू 222, विच इज़ अलाइनमेंट, विच इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, विच यू नो हिंट्स टूवर्ड्स कि आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हो, अ सोलमेट कनेक्शन एज वेल. राइट. 10 ऑफ कप्स इन द लवर्स एंड द हिएरोफेंट के साथ आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल फ्यूचर देखते हो. आपको लगता है ये आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ है, ये वाले है. इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू बिलीव इन. देन द हर्मिट टॉक्स अबाउट, आपको लगता है कि अगर यहाँ पे ये सिचुएशन में, ये कनेक्शन में थोड़ी और मैच्योरिटी आ जाए, थोड़ी और स्टेबिलिटी आ जाए, देन यू कैन इवन थिंक अबाउट गिविंग अप ऑन योर इंडिपेंडेंस फॉर दिस पर्सन. यू कैन थिंक अबाउट लेटिंग योर गार्ड्स डाउन. मतलब आप ऐसी कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए रेडी हो ये पर्सन के लिए जो आप यूजुअली किसी और के लिए शायद सैक्रिफाइस ना करो, शायद आप किसी और के लिए उतना गिव इन ना करो रिलेशनशिप में, या फिर सैक्रिफाइस ना करो जो आपके पर्सन के लिए करने के लिए रेडी हो. बट ओनली इफ़ यहाँ पे एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, काइंडनेस भी मुझे सुनाई आ रहा है. तो काइंडनेस नहीं आ जाती, काइंडनेस नहीं आ जाती. तो हो सकता है ये पर्सन थोड़े हार्श होते हैं आपको लेके, या फिर आपके कनेक्शन में ओवरऑल थोड़ा एक यू नो अनकाइंड एनर्जी है. मतलब हो सकता है आप दोनों बहुत हार्श बातें करते हो क्या एक दूसरे से. वेज मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी मोर. हाँ, आप चाहते हो ये पर्सन आपसे थोड़ा जेनरस हो जाए, थोड़े काइंड, गिविंग, लविंग हो जाए, थोड़े और ज़्यादा गिविंग हो जाए, चाहे ये इमोशनली ओपन अप होना हो या फिर यू नो जस्ट इन जनरल थोड़ा काइंड, थोड़ा गिविंग, थोड़ा जेनरस हो जाए आपके तरफ. दैट्स व्हाट यू वांट. एंड इफ दैट्स योर एनर्जी, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स योर पार्टनर्स एनर्जी. लेट्स डाइव इन विद व्हाट दे आर थिंकिंग. Pile number 2's person's thought and emotions and feelings towards them.
ये पर्सन ने ना फिलहाल खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ हो सकता है, एंड निगेटिव थॉट पैटर्न्स, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, खुद ही को विक्टिम मेंटालिटी में डालना, रिस्ट्रिक्शंस में रखना कि नहीं मैं तो उनका फ़ोन नहीं उठाऊंगा, बिकॉज नहीं उठाऊंगा, बस मुझे इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो उन्होंने खुद के थोड़े रीजंस, थोड़े रूल्स बना के रखे होंगे जहाँ पे ये खुद को आपसे दूर रखते हैं या फिर आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते या फिर खुद को आइसोलेशन में रखते हैं टू एन एक्सटेंट जहाँ पे उनको लोनली फील होता है, जहाँ पे उन्होंने पूरी दुनिया से विड्रॉ करके रखा है, जहाँ पे इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना के रखा हुआ हो सकता है बिकॉज उनको समझ नहीं आता है मैं करूँ तो क्या करूँ। सिंपल एज एक आपको टेक्स्ट कर दे या फिर आपको मैसेज कर दे तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए, बट देन इनकी सेल्फ इम्पोज्ड जो इन्होंने थॉट्स बना के रखे हैं कि आप ऐसे हो आप वैसे हो, या फिर अगर ये इन्होंने आपसे ज़्यादा बात कर ली तो आप इनको ऐसा समझोगे वैसा समझोगे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है ये फिलहाल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बिकॉज सेल्फ इम्पोज्ड है। मतलब उनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे या फिर अपने जो इमोशंस को बताएंगे तो शायद आप इनको नीडी समझो, आप इनको जज करो या फिर आप उनको जजी बोलो अगर उन्होंने आपको कोई अपने ओपिनियंस बताए तो। ये सेल्फ इम्पोज्ड है ना, लेकिन आपसे थोड़ी ना इन्होंने कभी कन्वे करी है ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने बोली हुई चीज़ें इन्होंने आपसे कन्वे करी है एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, देन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने उन एग्जाम्पल्स के अलावा सोची है जो सेल्फ इम्पोज्ड है, जो रियलिटी एक्चुअल में नहीं है। सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फिलहाल आपके पर्सन जो है वो लोनलीनेस को फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके एब्सेंस में, आपके विड्रॉल में ये पर्सन दे आर एक्चुअली सफरिंग। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनके हो सकता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पीछे इनका पूरा ध्यान हो, सेल्फ केयर करना चाहते हैं या फिर उनको लगता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप खुद से प्यार करते हो, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनके घर में या फिर उनके करियर में, इनके फैमिली में, या फिर आपके हो सकता है टेक इट अदर रेजोनेट्स। सेल्फ सेंटर्ड आपको ये मानते हैं या फिर ये खुद है। यहाँ पे जेलिसी है, थोड़ा सा सस्पिशियस होते ही आपके तरफ, मतलब कंप्लीटली नहीं है बट उनको लगता है लाइक शुड दे बी सस्पिशियस। उनको फियर आता है क्योंकि मिसट्रस्ट आता है, डिसीट का डर है, तो उनको लगता है कि शुड दे बिलीव इन यू कम्प्लीटली और नॉट। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, सो आने वाले टाइम में आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन हो सकता है ये आपसे आके बात करे, या 8 ऑफ वंस हो सकता है ये आपसे आके बात करे बहुत ही इनर स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन सेल्फ डाउट तो कहीं ना कहीं होगा। मतलब ये आने वाले टाइम में ये थोड़ा अपने मेंटल प्रेजेंस से बाहर लेके थोड़ी सी ना इनर करेज को लेके थोड़ी सी हिम्मत करके आपकी तरफ आएंगे, बट ये पूरी हिम्मत करके नहीं आएंगे। तो आधी हिम्मत के साथ ये पर्सन क्या करेंगे पता है, आपको मैनिपुलेट करेंगे, सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्शियसली नहीं करेंगे, बट देन बिकॉज दिस पर्सन इज सो मच वीक मेंटली एंड इमोशनली राइट नाउ कि वो पूरा सच आपसे नहीं बोल पाएंगे, कि वो पूरा सच आपके सामने नहीं रख पाएंगे। तो व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज मैनिपुलेट द सिचुएशन और मैनिपुलेट यू इन अ सर्टेन वे, जहाँ पे वो रिलेशनशिप को तो कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट ये पर्सन एटलीस्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे एडवाइस यहाँ पे यही है कि गिविंग एंड रिसीविंग करो। तो ये जब भी आपके लाइफ में आए, आपसे बात करें, तो आप थोड़ा जेनरॉसिटी से इनकी बातें सुन भी लो। आप उनको थोड़ा कंपैशन, थोड़ा काइंडनेस दो, एक काइंड ईयर दो सुनने के लिए। अब भले ही समझ आए नहीं आए ठीक है, बट इन द मोमेंट सुन लो, मतलब काउंटर मत दो। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 भी। देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन, देखो ये पर्सन के ना इंटेंशन खराब नहीं है, बट इनकी इमोशनल स्टेट खराब है। इनकी इमोशनल स्टेट वीक होने के कारण ना इनके एक्शंस हो सकता है आपकी तरफ खराब निकल करके आए, बट क्या इनके इंटेंशंस खराब है? एब्सोल्युटली नॉट। इनके इंटेंशंस अच्छे ही है, बट आपको बोला जा रहा है जब भी ये पर्सन आएंगे, अगर इन्होंने थोड़ा सा भी बुरा बर्ताव किया, आपको बोला जा रहा है आप वही करो जो आप दोनों के लिए सही है, ना सिर्फ उनके लिए, ना सिर्फ आपके लिए, बट आप दोनों के ही लिए जो चीज़ सही है आपको बोला जा रहा है कि आप वो चीज़ करो। उससे क्या होगा ना, आपके दोनों के बीच में एक बैलेंस आएगा, कार्मिक साइकिल्स जो है वो ख़त्म होगी, एंड कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने की वजह से आप दोनों के बीच में वो जो कांस्टेंट साइकिल है ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का ख़त्म हो जाएगा।
ये बहुत सैड है यार, बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस। तो दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। उनको लॉस पूरा एट कोर फील होता है। अगर आपको लगता है ना इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, हद से ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये आपसे ज़्यादा तकलीफ में है फिलहाल विदाउट ऑफ द सेपरेशन। एंड फाइनेंशियल भी लॉसेस हो सकते हैं इन पर्सन के लाइफ में चल रहे हो। लोनलीनेस है, नीडी है, इनसिक्योर है, फियर है, लो सेल्फ इस्टीम है। जैसे मैंने बोला ना इमोशनली ये पर्सन वीक है, तो लो सेल्फ इस्टीम की वजह से इमोशनली ये पर्सन वीक है, जिसके वजह से ना ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव तो हो सकते हैं, राइट। सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अनबायस्ड जजमेंट दो। मतलब ये मत सोचो कि ये आपके पार्टनर है या आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट जस्ट लुक एट देम फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, अ नॉर्मल ह्यूमन डिसेंसी, कि उनके सिचुएशन में अगर आप होते तो आपको क्या फील होता। एंड अगर आप उनकी सिचुएशन को समझ पाते हो तो थोड़ा उनको समझो। अगर सिचुएशन को नहीं भी समझ पाते हो, स्टिल आपको बोला जा रहा है कि काइंड ईयर दो, आप सुन के लो, बस दैट्स इट। वो बहुत ज़्यादा हील करेगा आपके पार्टनर को। एंड अगर आप सुन के लोगे ना, एक काइंड ईयर दोगे, एंड उनको लगेगा कि वो आपके पास सेफ है, वो आपके पास आके कुछ भी बोल सकते हैं, देन जब वो नेक्स्ट टाइम आपके सामने ओपन अप होंगे ना, तब शायद वो ज़्यादा हिम्मत करके, उनका सेल्फ स्टीम थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, वो थोड़ी ज़्यादा करेज के साथ आपकी तरफ आएंगे, और तब शायद आपके पार्टनर ना बहुत सारा सच बोलेंगे। बट फिलहाल तो वो एक ट्राई कर रहे हैं, वो एक एक मौका देना चाहते हैं कि वो ओपन अप करे, ताकि वो चीज़ें बोल करके दिखाए। आपको बोला जा रहा है कि उनको बस सुन लो, बिकॉज मुझे लगता है ये पर्सन इजीली ओपन अप नहीं होते, या फिर अगर ये होते भी थे तो इनका सेल्फ स्टीम इतना कम हो चुका है ना पिछले कुछ दिनों में कि ये वो बोल नहीं पाते चीज़ें जो वो ईजिली बोलते थे पहले। तो आपको बोला जा रहा है कि उनको, एंड दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स आर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू बी परफेक्ट, कि नहीं बोलना पड़ेगा मतलब बोलना पड़ेगा, ओपन अप होना पड़ेगा मतलब ओपन अप होना पड़ेगा। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। यू विल हैव टू लाइक ऑल्सो, अगर आपके पार्टनर के इंटेंशन अच्छे और अगर वो कोई चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं तो आप उनको करने दो ना, आप उनको सपोर्ट करो वो चीज़ में, उनको रोस्ट मत करो, राइट। दैट्स द मैसेज कमिंग अप हियर। पाइल नंबर 2, आपको बोला जा रहा है आपके पार्टनर को एक काइंड ईयर देना, सुनने के लिए, उनकी बातें सुन लेना, तो उनको एक सेफ कंफर्ट जोन आपके साथ जब फील होगा ना, तो वो और ज़्यादा ओपन अप, और ज़्यादा ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके सामने, जो आप ही के रिलेशनशिप को बेनिफिट करेगा। हो सकता है इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो ये वेट कर रहे हैं कि कब इनके लाइफ की चीज़ें ठीक हो, तो वो लाइफ में थोड़ा खुश आए, स्टेबल, उनके लाइफ में थोड़ा एक ये आए, बैलेंस आए, ताकि वो फिर रिलेशनशिप में भी शो अप कर पाए। ये बहुत करते हैं यार, आपके पर्सन आपके लिए बहुत सोचते हैं। ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, बट समय उनका साथ नहीं दे रहा है। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, राइट। डू क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट सेक्शन में 222 लिखना, आपका एंजल नंबर है वो। आई जस्ट सॉ दैट आपकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आई एम सेंडिंग यू सो मच लव एंड लाइट गाइज। आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे दूसरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक फॉर एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।